So once you start this, चलिए। तो नायडू जी, आप तो लास्ट टाइम नहीं थे। तो हमने कुछ बहुत ज्यादा भी डिस्कस नहीं किया था। तो लास्ट टाइम का अगर हम कुछ रिकलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ रिकलेक्ट करना चाहें तो आप बताइए। तो आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा, लास्ट टाइम हम, Can I say something? हाँ हाँ बिल्कुल। Just to keep consistency, what we are doing is we are not quoting any particular book or any particular person, and we want people to discuss their own thoughts, their own feelings, their own experiences. And it is not somebody has said something that is to be discussed. That is not so. So we need to stick to that particular thing. Obviously, we will have to be reminded all the time, and we will be reminding each other as well if things are going in a different direction altogether. So हे सगळ्यांकरताच आहे की आपापले हे एक्सपिरियन्सेस डिस्कस करा. अमुक अमुक ठिकाणी मी वाचलेलं आहे असं म्हणण्याच्या ऐवजी मला असं वाटतं. Express your own opinions, express your own thoughts. That is where we are trying to keep the discussion. We don't want the discussion to go in a particular way. Krishnamurti has written this, Krishnamurti has written that. Huh. As far as possible, no reference. So then it will remain in a individual experience. Individual experience. इसमें And I'm trying to make a small write-up on that, which we will read every time, so that we remain in that particular frame of mind. Yeah, actually, what happens is when we find through our own experience or our own learning, we may read book, we may listen to someone, we may have a discussion, we may learn experientially. But when we learn and understand it, rather than then it becomes your, and then even if you listen to somebody else later on, suppose Krishnamurti, okay, this I realized, and he's also saying this, so you also then understand what he's saying. But you don't have to quote him. It is, you are validating your learning through somebody else's teaching also. So that is what it is. It's all about, the idea is not to basically just believe blindly that somebody said this, so I'll believe this. There's no perfection kind of a thing. You are right every time. We are all learners. So we are all learners. We are going to discuss what we know, what we understand to be right. Okay. Yeah. That will get corrected as the time goes by. So that is bound to happen. So many things. There's nothing wrong in saying that I was wrong at that particular time. References also can be quoted whenever required. References as far as possible, I feel. In case required. Quoting, Quoting, don't do it. Yeah, I am with you only. But only when required as. एक्चुअली जिनने भी जो भी फाइंड करते हैं अपने आप, जिसने भी जो भी सीखा है, चाहे कृष्णमूर्ति जी ने या ब्लावत्सकी जी ने, जिनने भी सीखा है, उनका मतलब ये था कि आप भी खुद सीखो अपना आप वैसे ही। उनने पता कर लिया और आपको बता दिया तो वो सीखना नहीं होता, उसको समझना जरूरी है। तो अगर जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल, शायद मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि इफ आई हैव अ चाइल्ड, will I prefer my child should learn on his own, or will I prefer that I teach him everything, spoon feed him? What is our preference? We'll all prefer that child should learn on his own. No? हम चाहेंगे वो अपनी मेहनत करके सीखे, थोड़ा कष्ट झेले, थोड़ा धक्का खाए, एंड स्ट्रगल करे एंड फिर सीखे विदाउट जी। Also learn from child. वो तो अलग चीज है। मतलब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि किस तरह सीखने का तरीका क्या सही होता है। कि कोई बांट के आपको बना के खिला दे और आप मान लो उसको, तो जब तक हम खुद अपने एफर्ट नहीं करेंगे, दूसरे ने एफर्ट किया, पता कर लिया, बट उसने कैसे पता किया और उसको क्या एक्सपीरियंस हो, क्या फीलिंग हुई, कैसे अंडरस्टैंड किया उसने, वो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस के थ्रू हमें जाना जरूरी है, रादर कि किसी ने बता दिया भाई ऐसा होता है। किसी के बताने से हमारे को समझ में नहीं आता जब तक हम खुद नहीं देखेंगे। जैसे कोई चीज है, उसने बोला वहां पर वो स्विट्जरलैंड में एल्प्स ऐसा है,
अब उसके बताने से क्या आपको मालूम पड़ जाएगा एल्प्स कैसा है? जब तक आप एल्प्स पे नहीं जाएंगे तब तक आप खुद को ही नहीं समझ में आएगा। हाउ कैन यू विजुअलाइज? मून पे कोई चला गया, उसने पिक्चर दे दी, तो आपको वो, आर यू सेटिस्फाइड बाय सीइंग दैट पिक्चर? और इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मून कैसा है, तो आपको भी एस्ट्रोनॉट बन के जाने में ही तो पता चलेगा ना। तो हमें, वी आर ऑल लाइक, everybody is a astronaut in himself, everybody is a yogi in himself, everybody is a guru in himself. That's why हम बोलते हैं ना कि we are our own guru only. हम ही गुरु हैं, हम ही स्टूडेंट हैं, और कोई नहीं है। किसी पे हम डिपेंडेंट होना चाहते हैं कुछ मतलब, नॉट टू टेक नेम, समबडी बोलता है मैं, मेरे को तो, मैंने सब गुरु देख लिए, कोई भी ठीक नहीं मिला, तो तुम गुरु ही ढूंढते रह गए, अपना सीखने का एफर्ट ही नहीं किया। तो यही तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इस डिस्कशन का ही आधार, फाउंडेशन इज दिस, कि हम खुद ही खोज करें, और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कौस्तुभ जी बोले, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसी को बात करें। क्योंकि वो हम किसी का, वो एक बैसाखी होती है ना, स्टिक, किसी की स्टिक, बहुत सारी स्टिक लेके चलना चाहते हैं वो स्टिक छोड़ दो, वॉक वॉक ऑन योर ओन, फॉल फॉल। फॉलिंग क्या है? लाइक देयर आर लॉट ऑफ फाइंडिंग्स व्हिच आर रॉन्ग। मैं भी अभी भी इतनी सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। There are many things which I am also constantly finding are contradictory to what I found earlier. Like last time I gave an example that body is immortal, body is mortal. अब ये वो बोलने का तरीका है, body is mortal. अब if you really see why is body mortal, body is also immortal because body is made of 5 elements, and when it decomposes, it goes back to the same source, and the ultimate source of which that 5 element is made is also coming from the initial source. आप जाने, अच्छा, so basically the everything is originating from that source only, which is immortal. So saying that body is immortal is also actually not correct if you really think this way. But हम लोग बोलते हैं बॉडी खत्म हो जाती है, सोल चलती है। अब सोल दे से इमॉर्टल, बट सोल, अब उसका एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, हम बोलते हैं लिबरेशन, मोक्ष। ये सोल लाइफ एंड डेथ से मोक्ष मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब सोल भी एक बार मर जाएगी एक टाइम जाके, उसको भी हम बोल सकते हैं सोल भी गई। अब उसको डेथ भी बोल सकते हैं, उसको लिबरेशन भी बोल सकते हैं। तो सोल जब चली जाती है तो हम उसको लिबरेशन बोलते हैं, बॉडी जब चली जाती है तो उसको डेथ बोलते हैं। तो ये हमारे ही बनाए हुए शब्दों में ही हम फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी, स्पाइडर इज स्पिनिंग वेब, हम भी अपने जाल बुन रहे हैं, हम शब्दों के जाल बुन रहे हैं, रिचुअल्स के जाल बुन रहे हैं, गुरुओं के जाल बुन रहे हैं, मतलब वी आर स्पिनिंग सो मेनी कॉबवेब्स, एंड हाउ टू understand each word in reality, that's a problem, so whatever we find this was also wrong, फिर आगे जाके उसको समझते हैं नहीं ये एक्चुअली है। एंड व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड कि, व्हेन यू अंडरस्टैंड वो जो सोर्स तक जब आदमी चला जाता है ना, कि वो सोर्स वो है, तो फिर वही एक एक्चुअल लिबरेशन होता है। फिर ये सारा पूरा ड्रामा ही है, पूरा एंटायर लाइफ इज ड्रामा। तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे, आई वाज आस्किंग मिस्टर सेनारे जी की, शुड वी रिकलेक्ट, आप रिकलेक्ट करना चाहोगे लास्ट टाइम क्या बोला था? अविनाश, अविनाश जी तो ऑनलाइन है, हाँ, बट हु वाज सिटिंग हियर? वो कौस्तुभ जी इज कजन, सॉरी nephew, he is not there today. So he shared his experience. That हाँ, he said, coming to the point about the decluttering mind. We were discussing many other issues understanding. हाँ, And how does the mind work to make different levels it works? So many things हाँ, were discussed at them. हाँ, Decluttering was Decluttering of the mind, that was the key, but then Key. many other issues were also. other issues were also come up because it is a very holistic subject which has many other connections to our day-to-day life. Like simple thing like
somebody says I am searching for guru but I am not found a guru. So this is also connected in some way because it's part of the learning, how somebody is progressing in learning and how we should, is that the right thing to really keep searching for a guru. So these things are like, there are so many narratives in the society. Many people are telling you guru is needed, and many gurus are telling guru is not needed, but still people are running. So what is right and wrong, that is also need to be understood. So while we are working on decluttering of mind, but there are many other things which are related to the entire process of learning that also need to be understood. So we keep discussing other things. Somebody comes up that I had an experience. Now, what is the meaning of that experience? Can we understand it scientifically? So that is why when I told him that there is an element of ego when we say this happened to me. So he's feeling very great. अब उससे हुआ क्या? कौस्तुभ जी यही बोलते हैं हमेशा. So what? If you had this, then what happened to you? What benefit you got? Was there any learning in this? And why this happened? Have you understood it? No, then फिर क्या फायदा? फिर तो सिर्फ ईगो ही रह गई कि मेरे साथ ऐसा हो गया. उससे क्या आपको फायदा मिला? तो मैंने अपने एक आध एक्सपीरियंस बताए थे कि वो जब मेरे एक्सपीरियंस हुए तो वो कैसे हुए, वो मैंने उसका एक लॉजिकल एनालिसिस किया और उससे क्या फायदा हुआ वो भी समझ में आया, और वो फिर दोबारा होगा नहीं होगा वो भी समझ में आया. Which I explained, I think, I don't know if you remember, when you have that experience, there are places, there are people with higher electromagnetic field, aura. So I'm not using the word aura because I'm using the word electromagnetic field. So we discussed that we have electromagnetic field. Because we also discussed that matter, the whole universe is matter. Now, how it is composed, decomposed, which form it is, which shape it is, where it is, that is immaterial, but everything is matter in the universe. And that's why we say sab urja hai, energy hai. So when there is energy, that energy will have electromagnetic field. Now we are in a certain shape, certain form, made of matter. So we also have certain energy. There is a constant changing of energy which is happening. Energy is continuously changing its field. It can be negative, it can be more positive. It is, आप उसको हम इमोशनल टर्म में बोलते हैं तमस, रजस, सात्विक. सात्विक का मतलब है कि उसकी जो पॉजिटिविटी फील्ड है वो बहुत पॉजिटिव है, which is more useful. और जो तामसिक हम बोलते हैं, राजसिक बोलते हैं, उसमें वो फील्ड नेगेटिविटी की तरफ जाती है, वो यूजफुल नहीं है, वो हार्मफुल है. सो ये तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. एंड आप जैसी जिसकी फील्ड है, तो अब हम किसी जगह जाते हैं, जो योगी है, कोई संत है, उसकी फील्ड इतनी हाई फील्ड है, उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, तो उसकी जो फील्ड क्रिएट हो गई है वो आप पे ज्यादा इफेक्ट करती है. तो वो जब इफेक्ट करती है तो आपको एक वैसा एक्सपीरियंस होता है कि मेरा दिमाग शून्य हो गया, या मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ, मैं भूल गया. वो मोमेंटली होता है किसी किसी के साथ, जब आप वो फील्ड का इंटरेक्शन होता है. वैसे लोग उस तरह की फील्ड वाले, उस तरह की जगह, कहीं समाधि स्थल होते हैं, वो सब जगह ऐसे इजीली मिलती नहीं है. आजकल कलयुग में तमस ही ज्यादा है, मानसिक बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, लोग परेशान हैं, पागल हैं, तो उनकी फील्ड वैसे ही हो रही है. तो जो कलेक्टिव फील्ड भी है, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं हम अपने एक्शन से अपने ही नेगेटिविटी तो नहीं बना रहे, पर पूरी जो भी नेचर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस कर रहे हैं. तो एक जो ये पूरा यूनिवर्स है, इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू बैलेंस. तो वो बैलेंस करेगा तो वो प्रलय आती है, हम प्रलय को बोलते हैं भगवान ने प्रलय कर दी, बट वो सब नेचर का बैलेंस होता है. ये जितने टाइफून्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, दीज आर ऑल एफर्ट बाय द नेचर टू क्रिएट अ बैलेंस. तो वो जब एक्सट्रीम नेगेटिविटी आएगी तो वो नेचर विल रिएक्ट, बाउंस बैक करता है. आप किसी कुत्ते को, एनिमल को पत्थर मारो, वो बाउंस बैक करेगा, ये रिएक्शन है. अभी कुत्ता तो हम उसको कुत्ता देख रहे हैं, हम जानवर देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, बट एक्चुअली इफ यू सी दैट्स जस्ट अ एनर्जी, दैट इज अ कलेक्टिव, इट्स अ एनर्जी फील्ड which is reacting to what it is going through. So it's हम बोलते हैं कर्म. कर्म is what? कर्म is only action reaction. जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी हो रहा है. तो यही साइंस है.
कर्म और किस किस तरह का कर्म हो रहा है उसका वैसे ही रिएक्शन हो रहा है, वेदर यू सी इन अ वेरी लार्जर लेवल, universal level, or where you see at individual level, the formula is same. So this is how you can understand how the universe is actually functioning, and this is how when you scale down you will really understand how we are functioning. Now why are we functioning like that, why there is so much of negativity, that has to be understood, and then when we understand that, then we'll come to the main problem we are facing as mind clutter. तो अब माइंड क्लटर पे हम आएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको आप कहीं भी घुमा दो, यूनिवर्स पे घुमा दो, सोलर सिस्टम में घुमा दो, आप देखोगे मैथमेटिकली यू कैन स्केल इट डाउन, विल कम टू यू। अब इसका कहने का तात्पर्य भी ऐसा है कि अंदर भी सौरमंडल है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, अंदर आप ढूंढने नहीं लगोगे सौरमंडल बैठा है, बट द होल साइंस इज अ इट्स अ प्रोटोकॉल, science runs on a protocol, and if you see mathematics, biology, chemistry, physics, all is applicable in this universe. जो पूरी जो बॉडी बनती है एनर्जी से, मैटर से, वो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, उससे वो मटेरियल साइंस है, उसी से हर चीज बनती है। फिर उसमें फिजिक्स आती है, तो फोर्सेस आते हैं, फोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी में इनहेरेंट फोर्स अवेलेबल है उससे फिर डायनेमिक नेचर आता है फॉर्म, और उसके बाद मैथमेटिक्स होती है, तो पूरा जो डिजाइन है वो मैथमेटिकल है। सो और बेसिक हमने बात करी थी पॉजिटिव नेगेटिव की, तो सब कुछ करंट में ही चल रहा है। अब उसको कोई शिव शक्ति बोलता है, कोई गुड बैड बोलता है, नेगेटिव पॉजिटिव है, हमारे यहाँ वो नाड़ियां हैं ईदा पिंगला, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसमें भी वो ये चार फेज नहीं बनाया किसी ने, वो पॉजिटिव नेगेटिव में चल रही है आज तक, और कोई देयर इज नो वे, एनर्जी ऑल्सो फ्लोज इन पॉजिटिव नेगेटिव, एंड वो ही सारा, यही साइंस है और यही इसका बेसिस है। So now we'll come back to the mind because that is a main subject of discussion, which is of more interest rather than going so much deep into the cosmic science or the creation, which is very interesting. When you declutter the mind, you will actually start understanding this because your mind starts working very, very logically. Declutter होने के बाद सब वो उल्टा सीधा सोच ही नहीं सकता, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, रिप्रोग्राम हो जाएगा, हर चीज का आंसर खटाखट मिलता रहेगा, कुछ करंट एफर्ट ही नहीं लगेगा, जो सोचोगे वो कट सामने कट सामने। तो अब डीक्लटरिंग में यह है कि डीक्लटरिंग क्यों करना है। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड दैट वी आर ओनली डूइंग कर्मा एंड धर्मा। धर्म क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, एक्चुअली इफ यू रियली सी रिलीजन इज नथिंग बट इट इज एक्सप्लेनिंग धर्म। और हमारे जो उपनिषद हैं या वेद हैं या इवन बाइबल है या जो भी ग्रंथ हैं, उनका मतलब ही है कि आदमी मानवता को समझे, धर्म को समझे। ह्यूमैनिटी इज धर्म। व्हाट इज ह्यूमैनिटी, व्हाट इज द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, वी हैव टू परफॉर्म, वी आर हियर टू परफॉर्म, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवरी थॉट एंड एक्शन। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका एक बेसिस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, कॉमन रेफरेंस होना चाहिए फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। वो रेफरेंस को ही धर्म बोलते हैं। और धर्म क्या है, एक्चुअली इट इज अ डिजाइन, it is these are the specifications on which every thought and action is based. तो अब धर्म क्या है इसको समझना है, बहुत सिंपल है। धर्म कुछ नहीं है, हमारे जो गुण है वही धर्म है। हमारे कैसे गुण होने चाहिए, जो सात्विक गुण होने चाहिए, अगर उस पे हमारे थॉट्स एंड एक्शन बेस्ड है तो कोई देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द लाइफ। अब थॉट एंड एक्शन हमारे उस पे बेस्ड नहीं है, अगर हमारे के अंदर कुछ, आर वी रनिंग ऑन एक्सपेक्टेशंस, should we have expectations, are we having expectations, why are we having expectations, ये कोई सोचता भी है। हम do we do any introspection, do we do any self analysis, उसको ही तो साधना बोलते हैं। हमारी साधना जो है वो और कुछ नहीं है, इस आलती पालती मार पर बैठ के आंख बंद करके वो करके वो भजन करके भी कुछ नहीं होगा। अभी मैं मतलब वैसे हमने किसी को कोट नहीं करना है, बट अगर आप कृष्णमूर्ति को देखो, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन अमंग मोस्ट ऑफ द गुरु, ही वाज मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन आई वुड से, मतलब दैट इज माय ओन रीडिंग। ही आल्सो सेज, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बोला है कि ये सब, मैं परेशान हूँ ये जो दुनिया बेच रही है मेडिटेशन को, और मेरे भी वीडियोस ऐसे ही हैं, मैंने तो पूरा एक चैनल बनाया है जिसमें आई एम ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ मेडिटेशन, की ये मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन ध्यान है, जो हम जो भी कर रहे हैं उसमें ध्यान लगना चाहिए, बस यही वही फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन इज दैट।
Next level of meditation is when your mind is in dhyan, means when your mind is focused. Whether you are sitting, whether you are doing something, is it focusing that what you're doing, or it is traveling everywhere else except what you're doing? तो जब उस कंट्रोल स्टेट में जब माइंड आ जाता है, तब जो हम ध्यान करते हैं उसको बोलते थे एक्चुअली तपस्या। अब उसको तपस्या भी मत बोलो, उस माइंड से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। अब माइंड आप यूज कर रहे हो, अभी माइंड अब्यूज कर रहे हो, बट देर इज अ स्टेट वेर यू विल यूज द माइंड। राइट नाउ यू आर अब्यूजिंग द माइंड। When you are abusing the mind, what is happening is your brain is processing unnecessary things. And when it is processing unnecessary things, what is happening? It is utilizing your energy when it is not needed. तो आपकी जो ऊर्जा है, जिस काम के लिए है, उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रही, बट वो कहीं और इस्तेमाल हो रही है। जैसे अपना बच्चा बिगड़ जाता है तो गाड़ी लेके घूमता रहता है, पेट्रोल जला रहा है, वो क्या कर रहा है? ही इज वेस्टिंग द एनर्जी, ही इज वेस्टिंग हिज एनर्जी, ही इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल। वो वो क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है। आर वी डिसिपेटिंग और आर वी कंजर्विंग? आर वी सपोज टू कंजर्व, आर वी सपोज टू डिसिपेट? अगर मैं 2 बजे बाद खाना खा के मेरा सारा काम खत्म हो गया, व्हाट शुड आई डू? नथिंग। अगर मेरे पास 2 घंटे फ्री है तो व्हाई शुड आई डिसिपेट? आई शुड कंजर्व। अगर आप कंजर्व करोगे तो आप आपका जो इनटेक है, इनपुट है, वो भी रेगुलेट हो जाएगा। अगर आप डिसिपेट कर रहे हो, आप खाते रहोगे, खाते रहोगे। जो योगी हिमालय में होते हैं वो कुछ नहीं खाते। उनको पहले तो वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो प्योरिटी है वो आ जाती है, पानी भी प्योर है। तो कहते हैं वो एक गिलास दूध पे जिंदा रह लेते हैं, या थोड़ा सा 2 आलू बॉईल करके खा लेते हैं, और उसमें कोई ऐसा कोई मिस्टिसिज्म नहीं है वहाँ। इट इज ही इज कंजर्विंग, ही इज नॉट वेस्टिंग एनर्जी। वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। टाट वाले बाबा थे ऋषिकेश में, उनका मैंने वीडियो देखा था, मेरे चैनल पे उनका वीडियो भी है। वो बोलते थे मैं तो कुछ नहीं, मैं वो कोई योग, वो कुछ नहीं करते थे। ही वॉज नॉट डूइंग एनी योग। बोला मेरा तो वॉकिंग टॉकिंग ध्यान है, मतलब एक स्थिति है। और वो कुछ योग नहीं करते थे। योग करने की जरूरत क्या है? वो खूब चलते थे, वॉक करने जाते थे। वॉकिंग भी एक योग है, बहुत बढ़िया आत्मचिंतन है। अगर आप जंगल में चलने चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, आत्मचिंतन है। तो आत्मचिंतन तो एक जरूरी है, इसको साधना बोलते हैं। तो अगर हमें साधना करनी है तो डेली कम से कम अगर हम 1 घंटा भी निकाल लें रोज, और आत्मचिंतन करने लग जाए कि सच क्या है, मैं जो जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूँ वो सच है कि नहीं, पहली बात। बाकी तो सच बात की बात है। मैं जिस तरह जी रहा हूँ वो सच पे आधारित है कि नहीं। तो द ट्रुथ हैज नो रिलीजन, नो, ट्रुथ इज अबव ऑल रिलीजन। इवन थियोसॉफी सेज दैट, नो, द ट्रुथ इज अबव ऑल रिलीजन। तो व्हाट इज द ट्रुथ नाउ? व्हाट इज द ट्रुथ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माय ओन सेल्फ? एम आई ट्रुथफुल? एम आई ट्रुथफुल टू माय ट्रू नेचर? बोलते हैं ना, हम अपना ट्रू सेल्फ पता कर लिए। So am I really truthful to am I aligned to my true self? What is my true self? And what is my present self? अभी जो मेरा अवतार है, वो मेरे सच्चे, जो मेरे को होना चाहिए उससे अलाइंड है कि नहीं? या मैं, am I filled with selfishness? Am I filled with jealousy? Am I filled with greed? Am I filled with expectations, unreasonable expectation? I have too many desires, more than my needs. What are my needs? What are my desires? Why I am filled with desire? अगर आपके पास कोई डिजायर नहीं बची, नीड है, कोई डिजायर नहीं बची, तो वो उसको ही वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य क्या है? वैराग क्यों होना चाहिए? वैराग क्यों नहीं है? और वैराग में क्या अच्छाई है? वैराग क्या है? व्हाट इज लव? हर चीज में प्यार क्या होता है? प्यार का कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज, हाउ एवरी थॉट एंड एक्शन शुड बी फिल्ड विथ लव। ना व्हाट इज लव? लव की डेफिनेशन ही लोग भूल गए। वेस्टर्न लोगों के लिए तो लव का मतलब वही है, फिजिकल लव, लस्ट, अट्रैक्शन। बट लव क्या है? लव तो एक सम टोटल ऑफ ऑल सात्विक गुण, कि मैं सेल्फलेस हूँ, मैं डिजायरलेस हूँ, मेरे को कोई अननेसेसरी इच्छा नहीं है, मैं मेरे को, आई हैव नो जेलेसी, आई हैव कंपैशन, आई हैव एम्पैथी, आई एम केयरिंग। सो जब ये सारे गुण आ जाएंगे हमारे, शुद्धिकरण बोलते हैं ना हम, वी हैव डिफरेंट वे ऑफ सेइंग कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं अपना शुद्धिकरण कर रहा हूँ।
मैं आई एम प्योरीफाइंग माई माइंड। प्योरीफाइंग माई माइंड का मतलब कुछ नहीं है। प्योरीफाइंग मीन्स आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स। आई एम रिमूविंग माई नेगेटिव थॉट्स। मैं अपने गुणों को अलाइन कर रहा हूँ। जो सात्विक गुण थे, पैदा हुआ तो सारे गुण सात्विक थे, बट ड्यू टू कंडीशनिंग, ड्यू टू द सोशल इन्फ्लुएंसेस, ड्यू टू माई एक्सपोजर इन द सोसाइटी एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट, मेरे को उसमें इम्प्योरिटीज आ गई हैं। वो इम्प्योरिटीज निकालने को ही प्योरिफिकेशन बोलते हैं। और प्योरिफिकेशन से जब प्योरिफिकेशन हो जाता है तो फिर हमारा वो जो सम टोटल ऑफ ऑल द क्वालिटीज will actually be love. So when you go to some yogi who's radiating positivity, वो कुछ नहीं है, वो सम टोटल उसका लव ही है। आपको अनकंडीशनल लव फील होता है। अब जैसे माँ होती है, तो माँ से तो बच्चा अनकंडीशनल लव ही मिलता है उसको। उसका माँ के पास बच्चे के लिए कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। उसका जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पूरा प्योरिटी के साथ है। और आप भी किसी बच्चे के साथ जब ट्रांजेक्शन करते हो वो भी प्योरिटी से होता है। आप देखो, जब आप बच्चे से बात करते हो तो आपको खुशी होती है क्योंकि उधर से कुछ नेगेटिविटी नहीं आ रही। पर आप जब हम लोग से बड़े हो जाते हैं, जो हम बड़े होके एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक मिसट्रस्ट रहता है। पहला तो मिसट्रस्ट ही आ जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बट आप दूसरे के दिमाग को सोचने लगते हो, आपके दिमाग में ही उल्टा सीधा चल रहा होता है। तो हमें दूसरे के दिमाग भाड़ में जाए। वी शुड ओनली वरी अबाउट आवर ओन माइंड एंड वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म आवर ओन सेल्फ। दैट इज व्हाट इज नीडेड। So if this is understood, if there is any question, I will just pause for a minute. You feel that we are going the right direction. You feel this is the right approach. And now, if there is any question, then we'll go further into the depths. And we all are all evolved people here, so I don't think it will take much time to really understand this. Ultimately, you have to now start making that effort. And if you feel after just 2 sessions, if you are still have started making some effort in your area of negativity, whichever is there. कोई किसी को जेलसी होती है, किसी को एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, आपको कम हो सकती है। मेरे को डिजायर्स, इनको ज्यादा डिजायर्स होती है, इनको कम हो सकती है। वी आर ऑल रिलेटिवली मिसट्यून्ड समवेयर। Like scientifically saying, we are actually not performing optimally. We are malfunctioning. We are malfunctioning. और अभी ये संसार पूरा मेल फंक्शन कर रहा है, बहुत बुरी तरह मेल फंक्शन कर रहा है। सबसे बड़ा ईगो। ईगो इतना हो गया है, ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इग्नोरेंस। तो बोलते हैं हमने ये कहते हैं कि सेल्फ विल रियलाइज ओनली व्हेन यू रिमूव द डर्ट। तो डर्ट क्या है? ईगो। सबसे पहले ईगो इज प्रिवेंटिंग द व्हील टू बी रिमूव्ड। व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज देयर व्हिच इज प्रिवेंटिंग अस टू रियली लुक इनसाइड। हम बाहर ही देख रहे हैं, इसमें गलती है, उसमें गलती है, इसमें गलती है, पर हम अपने में नहीं देख रहे। दूसरे की गलती को हम ठीक ही नहीं कर सकते। बट अगर आज आप, योर ओन कंडक्ट कैन इंस्पायर अदर्स। योर ओन कंडक्ट, बोलते हैं ना कि जिसका भी इंसान का जो बिहेवियर है उससे आदमी इम्पैक्ट होता है। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा हो जाए तो दूसरे को फर्क पड़ सकता है। पर अगर मैं किसी को बोलूंगा कि तू ऐसा कर रहा है तो वो भागेगा, उल्टा हो जाएगा और वो आपको डंडा भी मारेगा। सो वी आर नॉट teacher for anyone. We are not here to correct anyone, whether it is my wife or my husband or my son or daughter. घर में 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, एक ही माँ बाप होते हैं, पर तीनों अलग क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनकी भी डेस्टिनी है। ये दिस इज अनदर एरिया टू अंडरस्टैंड डेस्टिनी एंड देन वील कम टू रीइंकार्नेशन। ये एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। बट डेस्टिनी, व्हेन वी हैव टू सम, so this is a jigsaw puzzle when we are discussing this purification process, and we are trying to say we will do sadhana, self inquiry, atmachintan, to really understand each and every गुण। उसमें डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी हमें लाइफ सिखा देती है कि डेस्टिनी होती है। और रीइंकार्नेशन भी उसमें फिर आ जाता है बाद में, जब उसमें और डीप में जाएंगे कि रीइंकार्नेशन क्यों होता है और लाइफ एंड डेथ क्यों होती है, वो भी उसमें समझ में आ जाएगा। और आपको अगर ये समझ में आ गया कि मेरे को, अगर आपने ये गोल बना लिया लाइफ में कि मेरे को यार इस लाइफ में ही पीछा छोड़ाना है, इस लाइफ में ही मोक्ष चाहिए, अगर ये आपने समझ लिया तो आप में सिंसियरिटी आ जाएगी टू चेज दिस गोल ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। जो कहते हैं ना, कर्मों का, पापों को धोना। पहले बोलते थे प्रायश्चित,
पहले लोग प्रायश्चित करते थे, वानप्रस्थ में जाने के बाद लोग प्रायश्चित करते थे कि क्या गलत किया मैंने। गृहस्थ में तो आदमी बिजी रहता है, पता ही नहीं चलता, बट वानप्रस्थ में जाने के बाद आदमी प्रायश्चित करना है। कौन प्रायश्चित करना चाहता है? कितने लोग प्रायश्चित कर सकते हैं? अगली नेक्स्ट क्लास में इफ यू कम एंड इफ यू कैन टेल कि आर यू रियली डूइंग प्रायश्चित। मैं देव लास्ट ईयर आई वाज लिविंग इन देवप्रयाग, आई वाज देयर फॉर 3 months, आई यूज्ड टू गो टू रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में वहां पर भगवान राम ने रावण को मारने के बाद वहां तपस्या करी थी प्रायश्चित करने की। तो जब भगवान प्रायश्चित किए, क्यों किए? दुनिया को दिखाने के लिए कि प्रायश्चित करके आप, ये भी एक साइंस है, हाउ टू डिसॉल्व योर कर्मास, हाउ टू, आपने जो गलत काम किए हैं कुछ, उनको भी डिसॉल्व कर सकते हो साइंटिफिकली। वो आपकी फील्ड से डिसॉल्व हो जाएगा। और कैसे कर्मों का फल मिलता है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। मैंने भी इन पे, मेरे तो काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, मैंने इस पे भी बनाया हुआ है, बिकॉज लास्ट few months I am doing some introspection research on, introspection is research on these things only, the science of cosmic science, human science, karma science, and very interesting. It is very, very logical, and science is very logical, and it all begins with philosophy only. Because without philosophy, philosophy is nothing but logical thinking. एनी बेसेंट है, उनने इतनी चीजें बुक ऑफ कॉन्शियसनेस लिखी है, पर उनने पहली चीज बुक में यही लिखी है कि मैंने तो ये पता कर लिया इतना, इसके भी आगे भी बहुत है, और इसमें अगर मैं चाहती हूँ कि कोई आए जो इसको शुरू से अपना खोज करे, तो उनने ये नहीं बोला तो यहीं से पकड़ के शुरू करो। तो वही मैं जो आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि हम चाहते हैं अपना बच्चा खुद खोजे। तो जितने भी लोग हैं जो हायर सोल्स सी हु हैव फाउंड थिंग्स, they are all telling find it yourself. It is very interesting to go and find yourself. If you think somebody will teach, that is a सबसे सबसे बड़ा अवगुण वही है, that we are lazy. We want somebody to spoon feed us, but we will not like if I spoon feed my child. Why should you spoon? When we spoon feed our children, what do they become ultimately? आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन क्यों बर्बाद हो गई है? उनको सब कुछ तो सिल्वर स्पून में मिल रहा है, सबको पका पकाया खिलाया जा रहा है। हमारे जमाने में क्या होता था? फिर थप्पड़ खाने को मिलते थे। ओनली थिंग वी गॉट वाज टकाक। एंड आई हैव यूज्ड दिस मेथड विद माय डॉटर आल्सो। 12th में भी उसके 2 लगा दिए मैंने, तो मैंने नहीं छोड़ा। मैं आई सेड कि दिस इज द ओनली वे, एंड वन स्लैप शी लैंडेड अप इन यूरोप। सो वी आर लाइक, कौन करेगा? करना है, दैट्स द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। वी हैव टू बी, पीपल शुड वैल्यू व्हेन दे आर डिप्राइव्ड। When they are given everything, they don't value. So our way of, the modern way of living and the influence of West, this is what has come to us, and we have forgotten our entire value chain. We have forgotten the entire value system. तो हम लोग, हमारा जो भी समाज है वो तामसिक हो गया है, सात्विक खत्म हो गया, सात्विकता खत्म हो गई। May I ask, Yeah. we are all knowing so many things, understand so many things, so many aspects we are, but still we are not able to pinpointedly arrest that particular point to further concentrate in a still a more well-focused way, wherein there is no deviation at all. We are totally concentrated. Because that particular state is not being, Yeah. I mean, we are nearing, but somewhere something is lacking. So how do we strike that particular Yeah. point so that we can enter that particular state? Anybody wants to answer this question? ये क्वेश्चन अविनाश जी आपको सुनाई दिया? No, I'm just asking because I have to repeat the question for the online people also. Avinash ji, could you understand? Naidu ji asked something. Hello, I got it. अच्छा, ठीक है. Okay, Jyoti ji will be giving some. Just saying to connect them actually breathing science. हाँ? Breathing science. Breathing science. अच्छा, breathing science. तो breathing science के बारे में, तो ब्रीदिंग साइंस के बारे में ज्योति जी पूछ रही हैं, और नायडू जी बोले कि हाउ टू पिन पॉइंट दैट, वी ऑल अंडरस्टूड बट वी आर स्टिल नॉट एबल टू पिन पॉइंट दैट, वी आर गेटिंग स्टक समवेयर. सो दीज आर 2 questions I will answer one by one. So sometimes we are unable to actually solve the problem.
हाँ And that's हाँ why हाँ we get हाँ, disgusted. इसको That's बोलते the हैं हम problem. धर्म संकट भी बोलते हैं, धर्म संकट। Yeah. तो चलो, Sometimes we are helpless. हाँ समटाइम्स We वी आर can't do हेल्पलेस। anything. तो उसके लिए हाँ. तुम्हें डेस्टिनी पे डिस्कशन भी करना पड़ेगा, उसमें डेस्टिनी भी अच्छा बहुत अच्छा. जरूरी है। हाँ, तो That कई helplessness बार we feel, na, that's very bad. तो हम एक एक करके जब सारे ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, तब ये जो पूरी पजल है, जो गुत्थी है, वो सॉल्व होगी। बिकॉज इसमें एक क्वालिटी को हम डिस्कस करेंगे, बट ये सारे कनेक्टेड है। जो कहते हैं हमारा एग्जिस्टेंस इज लव, बेस्ड ऑन लव, एंड लव इज नथिंग, लव इज बेसिकली इन ऑल द अदर क्वालिटीज आर इंग्रेडिएंट ऑफ लव। तो अगर वो नहीं है, एक भी क्वालिटी नेगेटिव है, सपोज सेल्फलेस नहीं है, हम सेल्फिश हैं, तो लव प्योर कैसे होगा, अनकंडीशनल कैसे होगा? तो हमें फिर उसके बाद जब उस क्वालिटी पे जाएंगे, तब समझ में आएगा। तो हमारा एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन लव, इज दैट ओनली। हमारा जो लव जो है बेसिकली, वो एक अल्टी फाइनल आउटकम ऑफ ऑल द क्वालिटीज है We हमारा। are removing all the negativeness to हाँ, bring the love. फिर जो फाइनल जो आता है वो लव होता है, उसको हम फील करते हैं, उसको हम लव बोल सकते हैं। बट वो एक प्योर एग्जिस्टेंस का फॉर्म होता है, उसमें पूरा प्योरिफिकेशन हो गया होता है, माइंड पूरा फोकस हो गया होता है। ये जब आपके सारे गुण पॉजिटिव हो गए, अगर आप में कोई डिजायर नहीं बची, अनवांटेड डिजायर, अगर आप में कोई सेल्फिशनेस नहीं बची। अब ये तो, अब बहुत से लोग तो ये नहीं मालूम होता कि सेल्फिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ये समझाने में। तो कई बार बोलता है नहीं, सेल्फिश थोड़ा तो होना चाहिए, सेल्फलेस नहीं, कैसे सेल्फलेस रहेंगे, लोग फायदा उठा लेंगे। अब इसमें फिर हमें कर्म समझना चाहिए कि कर्म क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये समझना पड़ता है। हमारी सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है कि हम लॉ ऑफ कर्मा नहीं समझते। हम बोलते हैं उसने ऐसा करा, तो अब ये समझना जरूरी कि मैं अपने ही कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे कर्म का फल मेरे को ही मिलेगा, दूसरे के कर्म का फल दूसरे को मिलेगा। तो उसको करने दो ना कर्म, वो अपने कर्म करने आया है, उसकी यात्रा अलग है, उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। अपने को किसी से मिक्सअप मत करो, दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखो। शुड वी रियली सी नाउ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग विच इज डन इन साधना। द इंट्रोस्पेक्शन इज कि शुड आई बी रियली लुकिंग एट व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगर आप कर्म लॉ ऑफ कर्मा समझ गए, तो शुड यू बी फोकसिंग। पहली चीज तो है कि ये एक थंब रूल होता है कि हमें अपने पे ही काम करना है। और दूसरा थंब रूल होता है कि बाहर नहीं देखना, हमें अंदर रहना है, अपने को इंटरनली इंटरनाइज करना है। तो अगर हम इंटरनाइज कर रहे हैं, तो दूसरे को अपनी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, देयर शुड बी नोबडी एल्स कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो और उसमें आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे का ही सोचने लगूं, तो फिर वहीं आपकी ग्रोथ बंद होगी। जहां वो दूसरा आ गया, ग्रोथ खत्म। और ये आप सोचो इस पे, अगर आप इस पे सोच विचार करो कि दूसरा, अगर मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा कोई भी, तो मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती। When we इसमें do, अगर आप डिसएग्री करते हो तो सोचो। when we do all this analysis and all things, you come to a where you get focused to a particular point, but it remains very short and shortest. Yeah, because there's something will come up, It na? breaks. Because some quality, negative quality in you is triggering some thought, because you still have some expectation. Yeah. See, ultimately, what is expectation? Expectation is coming out of like anger. Anger is not a quality. Anger is a nature. Anger is a tendency. But anger is an outcome of what? How do you make the grass stable? हाँ, That is what I. so we have to work on each quality. Yeah, we You have to understand each quality. And when you understand it so deeply, then that starts coming into your life. like पहले क्या होगा, आपको डिजायर्स है सपोज, एंड डिजायर्स जा नहीं रही है। बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन डिजायर्स कि ये मेरे को डिजायर है, ये मेरे को चाहिए, इसकी जरूरत है क्या। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा डिजायर का। लाइक मॉल में, मॉल में घूम रहे हैं, and I was thinking this in the mall only. I was in Warsaw and I was going around the mall. इम्पल्सिव होते हैं हम लोग, इम्पेशेंट होते हैं, सामने को देखा चाहिए,
तो दिस इज साधना। सामने देखा, मैंने बोला नहीं, इसको देखता हूँ, मैं दोबारा एक राउंड मार के आता हूँ। जब 2 राउंड मारे तो चाहिए नहीं थी। ये हमारा इम्पल्सिव, ये हमारा नेचर है। और अभी लोग बहुत इम्पल्सिव हो गए, ये चाहिए वो चाहिए। तो आप तो देखो, आप मॉल में गए और बिना शॉपिंग करके आ गए। अगर आप 10 दिन बाहर नहीं जाओ, 10 दिन बाहर नहीं जाओ, तो आप पैसे नहीं खर्च करोगे। और आप बाहर जाओ तो कुछ तो खर्च करके आ जाओ। ये साधना है कि आप जाओ और कुछ नहीं करके आ जाओ। ये साधना है। कैसे, हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, वो आप पे तुरंत काम करने लगती हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। आदत आपकी कंडीशनिंग है, मेरे को बाहर जाना है, कुछ तो खरीदना है, मार्केट में आया हो तो कुछ तो लेना है, यहाँ कुछ बिक रहा है। इस्कॉन मंदिर गया मैं, मतलब आई गो एवरी वीक वंस। इस्कॉन मंदिर जाओ, वहाँ माला जप बड़ा अच्छा है, माला जप इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो वहां पर वो बेकरी है, मतलब मंदिर है, पर मंदिर के सबसे पहले घुसे ही बेकरी है। सारी जनता वहीं खड़ी, आधी जनता मंदिर में, आधी जनता 5 मिनट भगवान के सामने, 1 घंटा बेकरी पे, और उनका बिजनेस चल रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। अब आप गए, रसमलाई भी खा लूं, वड़ा पाव भी खा लूं, समोसा भी खा लूं, थोड़ी मिठाई भी ले लूं, थाली भी खा लूं, पूरी सब पूरी भाजी भी मिल रही है, सब तो मिल रहा है आपको। तो आप वहां भगवान को उधर पूजा करके आए, और यहाँ आके धड़ाम फिनिश। They have gone to eat on Veda. When you go to. बट what is the purpose of going to the temple? Why to? Secondly, why should you eat outside? Now the next question is that why can't you make yourself? तो आजकल बाहर इतने सारे रेस्टोरेंट क्यों खुल गए हैं? मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, बाहर लोग क्यों खा रहे हैं। ये भी तामसिक है। When I was young in Kota, Sanjeev Kapoor said, you were asked what is the best food, please. He said, Home food. घर में पकाओ वही best food. वही best. International. ultimately he spiritually realized that if he's saying, if Sanjeev Kapoor is telling who's got restaurant, the best food is home food. I have realized this, मैं नहीं खाता बाहर, मैं चाय भी नहीं पीता बाहर, और अब मन भी नहीं करता। तो वो फिर एक पैटर्न है, मैंने वो पैटर्न चेंज कर दिया। वहां से आई यूज्ड टू कम फ्रॉम घनसोली इन बॉम्बे टू दादर टू माय हाउस व्हेन आई वाज वर्किंग इन जियो। तो 2 घंटा लगता था। आई यूज्ड टू कम बाय एरोली, ट्रैफिक जैम, एरोली वाला नाका पे ट्रैफिक जैम। एवरीबडी इज ट्राइंग नो स्टंट्स फॉर 2 आवर्स, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग कि मैं कैसे आगे निकल जाऊं, पर उसने 2 घंटे में पहुंचता है, 5 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलते। आफ्टर सम स्ट्रगल आई रियलाइज क्या फायदा, चलते रहो। आई फॉरगॉट आई वाज ड्राइविंग। मैं अपना गाने लगा लेता था, गाने भजन सुनता हुआ घर पहुंच जाता था। कितने बजे पहुंचा कोई मतलब नहीं है। वाइफ को तो आदत ही पड़ गई है यार, 9 बजे से पहले नहीं आएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप 6:37 निकलोगे, 9 बजे ही पहुंचोगे, कितना ही स्ट्रगल कर लो। बट इट्स अप टू यू हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन when you, so there is another very important value, acceptance. So we have to accept, and so ये एक इसको समझना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा था, आपका ब्रीदिंग वाला बता देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। ये बहुत लंबा डिस्कशन है जो आप पूछ रहे हैं ना, हाउ टू रियली कम, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच थिंग। डेस्टिनी को समझना पड़ेगा। डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे अलग अलग निकल जाते हैं, 4 बच्चे, एक तो बर्बादी हो जाता है। वन ऑफ द चाइल्ड विल बी डिजास्टर, वन विल बी मास्टर। सो व्हाट इज देयर, that is each individual's journey. Same school, same parents, only little different friends, but drastically different. So why there is a, if this doesn't this teach us, can't we learn from this that there is a life destiny for everyone? There are parents who are literally forcing the child to become something. So there are so many parents, like I was totally, when I come, whatever you want to become, I'm least bothered. So it should be like this. Let the child do what they want to do. छोड़ दो उनको, मरे खपे जो है उसकी लाइफ है। आप मरने दो उसे, but what can you do as a parent? Do that. You can't do anything more than that. अगर ये बात समझ में आ जाए तो लफड़ा ही खत्म हो जाए, because you are under arrest.
You are under arrest of your expectations from your child. आपने अपने को बंधक बना लिया है. आप आप you have life imprisonment. You are under life imprisonment. हम virtual arrest में रह रहे हैं. We are under virtual arrest of expectations, and this is the biggest eye-opening. Freedom is required. Freedom is जब आपने संसार को बाहर से छोड़ दिया तो संसार चल रहा है. आप मर जाओगे तो भी चलेगा, आपका बच्चा भी चलेगा, वो जिसको जैसा जीना है, जहां जाना है, जो करना है करेगा. गोविंदा है एक्टर था, then he became pauper. अमिताभ बच्चन, he became pauper, again gone up. तो क्या है किसका? हमारे लाइफ में भी उतार चढ़ाव होते हैं. जो जितना ऊंचा जाता है वो उसका उतार चढ़ाव भी उतना ही ऊंचा नीचा होता है. और आप यू कांट इमेजिन हाउ कैन यू हैंडल वेरिएशन. हैंडलिंग वेरिएशन मेरे भी लाइफ में अभी भी मेरे लाइफ में वेरिएशन चल रहा है. और वेरिएशन आते हैं. मेरी सैलरी भी ऊपर से नीचे वेरी करी थी. मतलब from, I mean, I don't want to quote the figure, but from one amount to it went to half also. I went to Saudi Arabia, it went double. Then tax free, I came back. It became half of what I was getting. So ये सब होता रहता है. How I deal with it, how my wife deals with it is very different. So it's for you how to deal. अब दूसरा आपके पास चारों तरफ तो पागलपन ही है. अगर आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से चलोगे तो आप भी पागल हो जाओगे. अब इस इंसैनिटी में हाउ टू बी सेन, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग. यही है. अभी मैंने एक वीडियो बनाया आर्ट ऑफ डाइंग. इफ यू रियली अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ डाइंग, you will get total freedom, understand everything. So anyway, we are again digressing. As you realize, we will keep digressing, but we'll come back. Now I'll tell you about the breathing. Breathing का आप पूछ रहे थे तो breathe. There are various aspects of breathing. हाँ. Vary from what you are talking. Food is one of the aspects because the mind. Food is because food is input to the body. Karma is also one of the aspect. Input to the body. दो ही input है. Machine है ये. All the people working. No, we were only working on mind right now. That's why I was not talking about food. But वो भी तो हमें तामसिक फूड खाना है या सात्विक फूड खाना है, क्योंकि बॉडी एक मशीन है. इसके 3 इनपुट हैं. एक प्राणा आ रहा है, वो भी प्रदूषित कर दिया. पानी आ रहा है, वो भी प्रदूषित कर दिया. खाना खा रहे हैं, वो भी प्रदूषित है. और विचार भी प्रदूषित है. और संसार भी प्रदूषित है. अब इसमें कैसे हम अपने को प्योरीफाई कर रहे हैं, यही एक कला है बस, और कुछ नहीं है. हाउ टू आइसोलेट योरसेल्फ. तो नाउ एक बहुत अच्छा वर्ड है सॉलिट्यूड, एकांत. अकेलापन और एकांत. ज्यादातर लोग अकेलापन में रह रहे हैं आजकल, और एकांत को समझ नहीं पा रहे. और एकांत को अगर समझ लिए, उससे सुंदर कोई चीज ही नहीं है. एकांत और वैराग में कोई फर्क नहीं है. तो इन सब शब्दों का जो झोल है ना, वो समझना चाहिए. और क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम लोगों की एक सोशल आइडेंटिटी बनी हुई है. तो हम सोचते हैं जब तक सामने वाला उधर से ठप्पा नहीं मारेगा ना हर जगह जाके, तो वहां से भी स्टैम्प लगा लो, उधर से भी स्टैम्प लगा लो. जब सब जगह से स्टैम्प लग जाएगा तो हम लेंगे हाँ हमसे. तो वो भी करप्ट, उसका भी स्टैम्प लगवाया, वो भी करप्ट, उसका भी स्टैम्प लगवाया, वो भी करप्ट, सब करप्ट लोगों का स्टैम्प लगवा लिया. और फिर हम सोचते हैं हम सही हैं. हमें किसी का भी, वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम इन दिस वर्ल्ड. We are very, very individual, and we should understand solitude, and we should understand nature, and we should see everything as a element of nature only. अभी बोलते हैं ना सोल टू सोल कनेक्ट क्या है. हम किसी को बॉडी में देखेंगे. आप वननेस क्या होता है? वननेस एक ऐसी स्टेट होती है, आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो जब आपको उसको स्त्री पुरुष में भी भेदभाव नहीं रह जाता. सीरियसली ऐसा होता है. स्त्री पुरुष तो छोड़ो, आपको किसी भी चीज में सब एक सा लगेगा. सब एक तरह से इनविजिबल हो जाएगा. जब सारा इनविजिबल हो जाएगा एक्सटर्नल, तो फिर आपको क्या चाहिए लाइफ में? किसी की चीज की भी जरूरत नहीं है. Total harmonization. टोटल हार्मोनाइजेशन विद द नेचर हो गया. व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर ओनली एटॉमिक. आप जब क्वांटम लेवल पे अपने को समझ गए, एंड दिस होल वर्ल्ड इज क्वांटम, तो फिर वो सब एवोपरेट हो जाएगा. ये सारा व्हाट इज इल्यूजन बोलते हैं. ये संसार एक माया है, इल्यूजन है. इल्यूजन क्या है? वर्ल्ड इज इल्यूजन. अब लोग सोचते हैं कि वाकई में इल्यूजन है.
Physically it is there. But what is illusion? मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वही मेरा संसार है। आपके दिमाग में अभी ट्रम्प क्या कर रहा है उसका विचार नहीं है। आपके दिमाग में प्रॉब्ली एकनाथ शिंदे क्या कर रहा है वो आपके विचार में हो सकता है, तो वो आपका दुनिया हो गई। कोई नहीं सोच रहा पॉलिटिक्स के बारे में, उसका विचार कहीं और है, तो वो उसकी दुनिया उधर है, वही दुनिया है। और जिसके अंदर विचार ही नहीं है उसकी दुनिया खत्म हो गई। तो ये भौतिक दुनिया है, ये भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार को खत्म करने के लिए, खत्म करना ही ये भी एक साधना है। तो कहने के डिफरेंट वेज हैं। आप प्राणायाम की आप बात कर रहे हो, ब्रीदिंग साइंस की। ब्रीदिंग साइंस की मैं इसलिए बात उस दिन लाया था क्योंकि इसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस दिन अविनाश जी भी पूछ रहे थे। तो अब ये एक व्यापार है, दिस इज अ बिजनेस। स्पिरिचुअलिटी इज अ बिग बिजनेस। पहली चीज तो ये समझनी चाहिए। 99% पीपल आर सेलिंग दिस एज अ बिजनेस। अब जैसे प्राणायाम है, किसी भी चीज का, जो अच्छे सच्चे गुरु होते हैं, चाहे हमारे थियोसॉफी के हुए, दे ऑल से कि हमारा आइडिया है कि आप क्वेश्चनिंग शुरू करो, हर चीज को क्वेश्चन करो पहले। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है उसको सवाल पूछो। अगर अगर सपोज जो भी बोल रहा है आपसे सवाल पूछना चाहिए। एंड जो बोल रहा है उसको भी, अगर बोल रहा है ना उसमें इतनी वो होनी चाहिए कि वो सामने वाले को समझा तो दे। इट्स नॉट अबाउट टेलिंग, यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, यू आर जस्ट टेलिंग एंड एक्सपेक्ट द सामने वाला सुन ले और चला जाए, विच इज नॉट राइट। फिर टीचिंग हुई नहीं, ना लर्निंग हुई ना टीचिंग हुई। टीचर भी करप्ट, स्टूडेंट भी करप्ट, म्यूचुअल करप्शन। सो जो भी चीज कोई बताता है उसको समझना जरूरी है। तो अब जैसे आप कोई प्राणायाम की बात करें, कुछ भी ले लो, प्राणायाम की बात करो। आप प्राणायाम में बोल रहे हैं कि प्राणायाम में ये वाली ब्रीदिंग करो भाई, 1 2 2 4, इनहेल 2, एक्सहेल 4, होल्ड फॉर 30 मिनट। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सर्च किया था, मैंने चक्रों पे, चक्राउस पे भी सर्च किया था। उसका भी मैंने एक, मेरा किसी से पॉडकास्ट में इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने पूछा था चक्र के बारे में, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। एंड आई गेव माय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ चक्रा, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सो हूएवर इज टीचिंग चक्रा मेडिटेशन, चक्रा पे मेडिटेशन भी हो रहा है। चक्रा किसी को दिखे ना दिखे, पर लोगों ने उस पर भी मेडिटेशन बना दिया थ्रू। सो प्राणायाम का जो मैंने उसमें, माय अंडरस्टैंडिंग वाज दैट व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। ये बोलते हैं ये प्राणायाम करो। मैं ये नहीं बोला वो गलत है सही है। मैं चलो फर्स्ट टाइम प्राणायाम सीखने जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई बताया तो सही भाई क्या है ये वाली ब्रीदिंग में क्या फायदा, क्यों है, साइंटिफिकली समझाया ना। इट इज साइंस ओनली ना, यू आर टेलिंग समबडी टू ऑल्टर योर ब्रीदिंग। गॉड हैज मेड मी ब्रीथ इन अ सर्टेन वे, एंड गॉड has also designed me in such a way, every human or every being on the planet, that their breathing pattern will change based on their activity. अगर मैं रन कर रहा हूं तो ब्रीदिंग तेज होगी। इफ आई एम मोर एक्टिव, ब्रीदिंग तेज होगी। क्यों? बिकॉज माई बॉडी इज नाउ फंक्शनिंग मोर, इट नीड्स मोर एनर्जी, तो वो एनर्जी ड्रॉ कर रहा है बाहर से। तो आप जैसे कार चलाते हो, एक्सीलेटर पे पाँव मारते हो तो पंप फ्यूल ज्यादा डालता है, नहीं तो कार कैसे तेज चलेगी, ऐसे ही चल जाएगी। तो आप दौड़ोगे और आप ब्रीदिंग स्लो रखोगे क्या? दौड़ ही नहीं पाओगे, बॉडी डिमांड करेगी। जब कोविड आया था तो मैं, आई वाज इन वॉर्सो, आई यूज्ड टू गो साइकिलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मैं साइकिलिंग करने जा रहा था, मुंह पे मास्क बांध लिया, नाक भी कवर कर ली। वो मैंने लाइफ में बस 2 ही बार मास्क लगाया, उसके बाद मैंने मास्क लगाया ही नहीं। तो अब जब मैं मास्क लगा के साइकिलिंग कर रहा था तो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, आवाज कैसे आ रही है और ये ब्रीदिंग नहीं हो रही, क्या कुछ तो हो तो नहीं गया मेरे को। बस 2 दिन तक मैं सोचता रहा, फिर देन आई रियलाइज ये तो लगता है हवा ब्लॉक हो रही है। एंड यू आर साइकिलिंग, योर nose is automatically drawing more, and you don't know you are drawing more, but nose is asking for more air and you are blocking it now. तो आप ब्लॉक कर रहे हो उसको। फिर मैंने वो मास्क हटा दिया तो सब ठीक हो I'm गया। using the mask only for covering my mouth. हाँ नहीं, यू कैन कवर फॉर दिस पॉल्यूशन, दैट्स Yeah. इट इज गॉड। बट कोविड में, सो माय For the most part. my point was, when you are doing some exercise, it is naturally drawing. Nature has given you the ability to adopt to your activity. When you are thinking more, so when mind is agitated, you are breathing louder.
क्योंकि आपका वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। अगर ब्रेन आपका 10 थॉट प्रोसेस कर रहा है, 100 थॉट प्रोसेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रेन इज ओवर वर्किंग। व्हेन ब्रेन इज ओवर वर्किंग इट नीड्स मोर एनर्जी, इट विल ड्रॉ मोर, तो आपका ब्रीदिंग बढ़ेगा। कोविड में लोग परेशान हो रहे थे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, तो लोगों ने उस पर भी बिजनेस बना दिया, ऑक्सीजन नहीं है। अरे वो घबराहट में उसकी ब्रीदिंग बढ़ रही है, वो बोले ऑक्सीजन नहीं है, वो और बढ़ गई ब्रीदिंग, डर के मारे मर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, तो जब कोई बोलता है कि मेरे ब्रीदिंग ऐसे करो, क्यों करो? गॉड ने कुछ बोला था कि प्राणायाम करके जियोगे? बिना प्राणायाम के आप ठीक नहीं रह पाओगे। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। क्यों कंट्रोल करना? ये तो नॉन वॉलेंटरी फंक्शन में आता है। आप खाना पचाते हो क्या? वो तो नॉन वॉलेंटरी है। Take as a inhale. You inhale some quantity of air. Breathing, you inhale three times more air in the inside. बट सपोज मेरे को चाहिए ही नहीं उतना ज्यादा, मैं क्यों लूं? अभी आपके पेट्रोल टैंक में 4-5 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो क्यों उसमें 10 डालोगे? ओवरफ्लो कर जाएगा। जब जरूरत नहीं है और आप ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ जाएगा? ओवरफ्लो करेगा अंदर, टैंक तो उतना ही होगा। और क्यों चाहिए ज्यादा? अगर मेरे को जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लूं ज्यादा एनर्जी बाहर से? ये ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नहीं, किस लिए होती है? साइंटिफिकली नहीं नहीं, किस लिए होती है? नॉर्मल ब्रीदिंग में you बोलते हैं ना उसको, लंग्स, लंग्स पोर्स है, कैपिलरीज। in normal breathing only 1/3 of them will open. Now how will what is the function of जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खुलेगा। ये तो ठीक है, नॉर्मल पोर्स भी ठीक है। मतलब मैं तो आपको जस्ट अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, ये तो आप एग्री करो और नहीं करो। नॉर्मल पोर्स में हेड का हेड चलता रहता है कि सपोज आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम रनिंग, तो ज्यादा चलेगा। तो ऑटोमेटिकली होगा। ये मेरी थिंग ऑटोमेटिकली है, बट मेरी थिंग डू नॉट हैपन आल्सो। अगर आपका बुद्धि ठीक तरह से आप नहीं रहेगा फोर्सेस देयर से वन टेस्ट था कि इतना वाओ छाती तो आप कहिए तभी यू आर इनसाइड, तभी यू आर आउट। क्यों करते हो? वो तो फिटनेस के लिए, हाँ, वो वही बस फिटनेस के लिए, क्योंकि उस टाइम वो फिटनेस चाहिए उस टाइम। बट आप सोचोगे 70 पे भी मैं उतना फैलाऊं, 70 पे नहीं फूलेगा। किसका? In normal life for a person fitness is रिक्वायर्ड, बट एट डिफरेंट एज डिफरेंट फिटनेस इज रिक्वायर्ड। अगर आप 70 पे जाओगे, मेरा चेस्ट उतना ही फूलेगा। तो इस तरीके से बेसिकली इट इज एक्टिविटी बेस्ड। वाई फौज में ये रूल बनाया है कि इतना ब्रीदिंग होनी चाहिए, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम उतनी फिटनेस होनी चाहिए, नीचे इसलिए। तो वो एक दैट इज अनदर वे ऑफ मेजरिंग इट, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। for a common man, when might is caused, whether it is certain behavior pattern, food have everything, some certain things have entered inside your body. Certain things have entered. मेरे हिसाब से तो ये एक बिजनेस मॉडल बना दिया है मेरे हिसाब से, और मैं तो इस पे लंबा डिस्कशन कर सकता हूँ। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे ब्रीदिंग, मेडिटेशन पे आ जाओ। मेडिटेशन की जो ब्रीदिंग करते हैं उसको ही मैं आपको समझाता हूँ पहले, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। मेडिटेशन में बोलते हैं यू ब्रीथ, यू नो, स्लो योर ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग कर दो, स्लो कर दो। अब वो स्लो इसलिए करते हैं कि कहते हैं ना, पूंछ को इधर से पकड़ो, इधर से नहीं पकड़ो। तो ये है कि ब्रीदिंग और एक्टिविटी इज कनेक्टेड। So when you want to make your mind calm, when your mind is calm, breathing is slow, because breathing is completely activity based. If you understand this, कि breathing is activity based, तो आप ब्रीदिंग को स्लो करोगे, कैसे करोगे? तो आप ब्रीदिंग स्लो नहीं कर रहे हो एक्चुअली, उस टाइम आप अपना डिस्ट्रैक्शन हटा रहे हो। जब आपको बोल रहा है ब्रीदिंग पे फोकस करो, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन उस टाइम हटा पा रहे हो। और जब ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन को हटा रहे हो। जब डिस्ट्रैक्शन हटता है तो एक्टिविटी कम होती है, जब एक्टिविटी कम होती है तो ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। आप ब्रीदिंग को स्लो खुद नहीं कर सकते, ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय एक्टिविटी। अगर ये समझ लो ना, तो अब ब्रीदिंग आपने सोचा कि मैंने ब्रीदिंग स्लो कर दी, बट वो आपने स्लो नहीं करी। आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे थे, आप शांति से एक जगह बैठे हो, तो वो धीरे धीरे ब्रीदिंग स्लो हो गई। अब जब स्लो हो गई तो आपको अच्छा लगा। अब लोगों ने बोल दिया ब्रीदिंग स्लो कर दो तो माइंड काम हो जाएगा। अरे भाई, माइंड को ही काम कर दो तो ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी।
अब आप चलो आधे घंटे 15 मिनट वो कर लिए, अब बाहर गए, काम शुरू हो गया फिर से। आप कैसे ब्रीदिंग स्लो करोगे? आप तो काम कर रहे हो। व्हेन यू आर रनिंग, आप सपोज यू आर रनिंग, हाउ कैन यू स्लो योर ब्रीदिंग? आपकी रनिंग ही नहीं हो पाएगी। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ यू आर टीचिंग समवेयर, हाउ कैन योर ब्रीदिंग बी स्लो? योर ब्रेन इज नीडिंग एनर्जी। when your body is asking for more energy, it has to draw more energy. तो वो ब्रीदिंग चेंज होगी। तो ब्रीदिंग का कनेक्शन एक्टिविटी से है। So when I am active, I am breathing and using that energy for that activity. But what is happening us with us is we are also drawing energy through breathing for something which is not needed, which is unwanted thoughts. आप अनवांटेड थॉट ब्रीदिंग करने से नहीं जा सकते, मेरा ये तो फंडा है। अगर आप उसको लॉजिकली चेंज करोगे, वी आर अ लॉजिकल डिवाइस, वी आर अ लॉजिकल डिवाइस, वी आर नॉट इलॉजिकल डिवाइस, वी आर नॉट अ फिजिकल डिवाइस। ये मैकेनिकल नहीं कर सकते आप, मैकेनिकली कुछ लगा दो और वो स्लो हो जाएगा। आपका लॉजिक कैसे चल रहा है? लॉजिक आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लग गया है, जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन में, और आप बड़े हो गए हो। आप अब आप कोई बहुत जेलस है, कोई बहुत सेल्फिश बन गया, कोई ग्रीडी बन गया, कोई स्ट्रीट स्मार्ट बन गया, कोई क्या बन गया, कोई बहुत हाई ईगो वाला हो गया। तो ये जो क्वालिटीज बन गई, जो हमारा नेचर बन गया, जो हमारी हैबिट्स बन गई, हैबिट इज नेचर इज अ पैटर्न, एंड पैटर्न गॉट एम्बेडेड एंड इट बिकेम लाइक अ प्रोग्राम। Now, sadhana is to understand what is the bug in the software, what is the problem in the program, how where, have I been brought up properly, मेरी अपब्रिंगिंग करेक्ट हुई है, am I selfish? तो ये जब इंट्रोस्पेक्शन शुरू होता है, इसको साधना बोलते हैं। देन वी स्टार्ट करेक्टिंग आवरसेल्फ, व्हेन वी स्टार्ट करेक्टिंग आवरसेल्फ, तो वो अपना भी माइंड डिक्लटर हो जाता है। फिर आप चलो कुछ भी करो, आपका माइंड कंट्रोल में रहता है। फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, प्राणायाम प्राणायाम क्या करना। Then Brahmari pranayam helps to stay, I mean, with vibrations which are being sent to the brain, that irons out certain negativeness. ओनली फॉर दैट टाइम ना, Pardon? ओनली फॉर दैट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट। अभी जो गाड़ी है जो धड़ाधड़ चल रही है, उसको आप स्विच ऑफ कर दो 2 घंटे। अभी कार को आप 24 घंटे चलाओ और 6 घंटे चलाओ, तो क्या होगा? आप जब मेडिटेशन ये जो करते हैं, तो वो एक तरह से आप अपने को उस टाइम जो भी नाम दे दिए, उसके नाम दे के हमने दाम ले लिए। नाम और दाम का खेल है ये। नाम दिए, बढ़िया सा नाम दे दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो लोग खुश हो गए, चाहे वो चल रही है उसी डेक्कन क्वीन से 5 मिनट कम ही लेती है बम्बई जाने में, पर नाम दे दिया वंदे भारत, लोग मोहित हो गए इससे। तो ये जो ब्रीदिंग है हमारी, ये जो मेडिटेशन आधे घंटे हम कर लिए, तो वो एक लाइक आपने वो अपनी मशीन आधे घंटे किसी तरह स्विच ऑफ कर दी और आपको अच्छा लग रहा है। But Brahmari is sending the आपने sound wave. हाउ डू यू नो दैट? Humming. तो उससे क्या होगा? आपको क्या मालूम? आप मेजर कर रहे हो, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? इसकी साइंस समझ में आएगी कि नहीं, कि ये जो साउंड वेव जा रही है वो कैसे इफेक्ट कर रही है? क्या ये सब मेजरमेंट है ही नहीं हमारे पास। हाउ विल बी जस्टिफाई कि ये हमिंग साउंड में फायदा हो रहा है? ये तो डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। जैसे बच्चा जब रोता है, हम झुंझुना पकड़ा देते हैं उसको, तो चुप हो जाता है। ये भी एक झुंझुने दे रखे हैं हमारे को। हम अपने को, हम बड़े हो गए, हम सोच रहे हैं अरे मैं कुछ हाई फाई कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये हमें कोई झुंझुना ही पकड़ा रहा है। पहले ये झुंझुना है, ये आप नाम दे दिया उसका, आपको बोल दिया ये कर। जैसे एक मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी बताई थी राजा की। वो राजा था, उसको बहुत मतलब वो बेकार राजा था, वो था वेरी बैड किंग। तो उसको किसी तरह उसको वो करना था, तो एक टेलर आए, वो बोले कि हम राजा आपको ऐसा कपड़ा देंगे जो किसी को दिखेगा ही नहीं ये कपड़ा। ये अगर स्टोरी सुनी है, तो उसको राजा को किसी तरह कन्विंस कर दिया, बोला ठीक है आप ऐसा कपड़ा बना दो जो किसी को दिखेगा नहीं। तो राजा को वो टेलर आते थे, उसका रोज नाप लेते थे, एक एक फॉर 1 वीक दे केप्ट डूइंग इट, एंड फाइनली आफ्टर 1 मंथ जैसे राजा कपड़ा बन गया, वो ड्रेस बन गई आपकी, चलो आज पहना के आपको शहर में घुमाएंगे और सब देखेंगे, किसी को दिखेगा नहीं ये कपड़ा। उसको करा, वो एक्टिंग वैक्टिंग करी और उसको ले गए, उसको दे स्ट्रिप्ड हिम एंड देन वो बेचारा उसको नंगा चला दिया। अब वो सोच रहा, अब लोग तो कुछ, बड़े लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, अब बच्चे खड़े थे, सब लाइन लगी थी सड़क पे, तो बच्चे चिल्लाने लगे राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। तो ये हमारा ये जो माया नगरी है भौतिक, इसमें जो जिस तरह का छल कपट है, वो पता ही नहीं चलता अच्छे अच्छे को कौन छल कपट कर रहा है। उसी में हम लोग बह जाते हैं, उसी में हम
बिक जाते हैं, उसी में हम बर्बाद हो जाते हैं, उसी को सच्चाई समझ लेते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं हम लोग। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन क्या बेच रहा है। ये धंधा चल रहा है। मैं ये तो 99% मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो कितने आश्रमों में रहा हूँ। आई हैव वर्कड फॉर आश्रम्स, आई हैव लिव्ड इन सो मेनी आश्रम्स, आई हैव सीन थिंग्स सो क्लोजली। तो क्या बताऊं मैं। आप What जब is required, pranayama is required at the initial stage to step up, to get into the. प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपका अगर माइंड वैसे ही डिक्लटर हो गया बाय साधना, इंट्रोस्पेक्शन, तो क्या करना प्राणायाम किस लिए चाहिए। मेरा माइंड में विचार ही नहीं आते, तो मेरे को प्राणायाम की जरूरत ही नहीं है, मेरे को एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। और नॉर्मल डे टू डे आई क्लीन माई हाउस। मेरा 4 बेडरूम का घर है, मेरे को 2 घंटा लगता है घर साफ करने में। वो मेरी एक्सरसाइज होती है। हमारा जो इनबिल्ट जो दिनचर्या है, दैट इज इनफ फॉर आवर एक्टिविटी। आई कुक माई फूड, आई क्लीन माई हाउस, आई वॉश माई क्लोथ्स, आई इवन वॉश कर्टन्स बाय हैंड, बेडशीट बाय हैंड। अगर आप ये सब करो जो हमारे सब उसमें था ना। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैंने ली नहीं। आई एम नॉट बॉट माई वॉश आई एम नॉट बॉट अ वॉशिंग मशीन। माई फादर, नाउ आई रियलाइज, माई फादर ही जस्ट पास्ड अवे, 93 year old। ही हेटेड क्लोथ वॉश इन वॉशिंग मशीन। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाई। अब मैं भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालता। तो दीज आर ऑल बेनिफिट टू यू। अगर हम थोड़ा सा काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसमें हमारी बॉडी को फायदा है। वो बॉडी के लिए चाहिए हमारे को इतना। लोग बीमारियां ले लेते हैं पर काम नहीं करना चाहते। We think we have earned a lot of money for our comfort. Now, what is comfort? Comfort is a disease. So, how do you really introspect these things and really come to realize कि comfort is a disease? अगर हम कुछ भी काम नहीं करें घर पे, तो फिर क्या है, दिमाग तो ऐसे ही चलता रहेगा। For the physical setup which is there, if there is some lacking in that time the coordination doesn't take place. Like I have not understood. I mean to say, everything, the activities like washing and other things, all the activities can be performed, हाँ, provided your physical setup is also equally good. it will remain good if you perform. It's all catch-22 situation. If you perform, it will remain good. If you stop it, it will become bad and that will not be in a position to perform. So Yeah, in because- time, if you don't do it, अगर मैं अभी छोड़ दूं, तो 5 साल बाद शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। Yeah, I'm experiencing, I'm doing both the things, but still I'm not able to give 100% because physical setup, it decelerates your. See, yours must be an individual case, but if you go to the villages in mountain, 90 साल के लोग सब काम कर रहे हैं। So each, don't go by one case, but in general, if you really think, it's about thinking. It's not about what I'm not doing, why I'm not doing, or why I'm not able to do. But there may be a problem where I may not be able to do it now. So coming back to pranayam only, I was about to finish that part. If we really think that breathing can, so if we change the mind, is it good to change the mind rather than change the breathing? And mind will change 24 hours. Breathing you can only alter when you are just sitting in a laboratory. You are made to sit in a laboratory and told that breathe like this for those whatever time you are in the laboratory. मैं तो उसको laboratory बोलता हूँ। ये जो जितने ये सब सेंटर बने हुए हैं, ये जो धंधे चल रहे हैं, वो सब लेबोरेटरी है। उसमें लेबोरेटरी में आपको वो कंडीशन कर देंगे कि कोई साउंड बॉल हीलिंग कर रहा है, बोला ऑडियो फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज, वो आप गए बड़ा खुश होकर चले गए, बाहर जाते फिर वही ऑल द डेविल्स आर देयर अटैकिंग यू। सो इज इट देयर टू रिकंडीशन योर माइंड और वर्क ऑन ब्रीदिंग? Why we look for breathing and all? Because we feel कि we still are under that illusion कि कोई ऐसा मैजिक ट्रिक है या कोई ऐसे टेक्निक है जो उससे हमारा सब सही हो जाएगा। आप उसी को ढूंढते फिर रहे हैं, बट जो सच्चाई है उसको नहीं ढूंढ रहे। मेरा ये इसकी अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज एक्चुअली digressing from the topic. Your topic is how to control the mind logically. It is a logical functioning brain. This human's body is very scientific. Everything is science. First thing we are forgetting there is no science. And theosophy में बैठे हैं, साइंस जो कोर है इसका, कॉन्शियसनेस की बुक एनी बेसेंट की, वो पूरी साइंस की है। पूरा थियोसॉफी पूरी सब एटॉमिक लेवल पे ही बात हो रही है। साइंस मेन है। तो आप साइंस को छोड़ ही नहीं सकते इस डिस्कशन में, और कुछ भी बोल रहे हो उसका साइंस समझो, नहीं समझो तो बेकार है। और थियोसॉफी का तो कोर ये है ही, और हम उस कोर को भूल के हम मिस्टिसिज्म में चले जाते हैं
हम टेक्निक्स में चले जाते हैं। दो वी डोंट वांट टू नेम जय कृष्णमूर्ति वगैरह, किसी का नाम नहीं लेना, बट उनने तो क्लियर कट इस पे अटैक किया है, ये सब मेडिटेशन टेक्निक पे। उनका एक वीडियो आप देखो, लेटेस्ट अभी मैं देख रहा था, वो उन्होंने क्लियर कट बोला ये सब फालतू है। ही मेट एस एन गोयनका, विपासना वाले, उनका वो वीडियो देखो, उनने क्या बोला उनको। तो वी हैव सच ग्रेट इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग टीचर्स, उनको हम समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, घूम फिर के हम फिर वो मिस्टिसिज्म में चले जाते हैं, ऑ में चले जाते हैं। डिविन डिवाइन, अभी एक है कोई बोलता है, मैंने कहा ये हम तो सब मशीन है, बोले नहीं, आई एम अ डिवाइन सोल। अब यहाँ ईगो आ गई, वो अपने को डिवाइन सोल बोल रहा है, वो पूरा वर्ड ही डिवाइन है। और डिवाइन क्या है? डिवाइन कुछ नहीं, साइंस है ये। Can you डिवाइन क्या please है? tell me, sir, suppose I want to melt a hard substance, melt or soften it. If I concentrate, is it possible? Why do you want to melt? No, Why do you not want to melt or, I mean, just a why do example. नहीं, why do you want to do that? My question is that, why do you want to do that? What is the need? तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चन भी रेलेवेंट नहीं रहते। हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे को ये इसका आंसर दो। अभी जैसे मैं पूछूं कि भगवान का जो ओरिजिनल सोर्स है वो कहाँ है, अभी प्रॉब्ली आई एम नॉट प्रिपेयर टू गेट दैट आंसर नाउ, so I will only look for an answer which I am prepared right now. I may not have all the answers. I mean, I'm not prepared to have all the answers, and that answer is not needed. That question is also not relevant, probably in my present context. That's what my answer is. Yeah, what I want to say, suppose you are having a kidney stone. And you want to see that it getting crushed and it forms into small bits, so it gets flushed out. So by some technique by which you can focus on that. मेरे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन था, मेरे किडनी में भी स्टोन था। अपना एग्जांपल देता हूँ। गॉल ब्लैडर का स्टोन था, मैंने को परवाह नहीं करी, जब दर्द हुआ हॉस्पिटल गया, उसने लिथोट्रिप्सी करी, तोड़ दिया, निकल गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, गॉल ब्लैडर काट दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये बॉडी मेरी थोड़ी है। एक गॉल ब्लैडर चला गया तो क्या होगा? अप्रोच अप्रोच इज डिफरेंट। काय को टेंशन ही नहीं लेना, बॉडी बॉडी से ही वैराग हो जाना चाहिए। बॉडीज क्या है? अभी आपकी एज तो मेरे से भी ज्यादा होगी, मैं 58 हूँ, मैं तो अभी मरने को तैयार हूँ, कुछ बचा ही नहीं करने को। तो काय को जितना जल्दी निकले बढ़िया है ना। यहाँ हु इज एंजॉइंग, टेल मी, इज इट गोइंग, लीविंग दिस वर्ल्ड इज बेटर और स्टेइंग हियर इज बेटर नाउ एट फॉर पीपल ऑफ आवर एज? व्हाट इज बेटर, ये कौन सोचता है? तो आर वी रियली प्रिपेयरिंग टू गो? जब हम जर्नी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या कहीं विजिट पे जाते हैं 10 दिन कहीं, तो 10 दिन बाद अब तो चलो अब हो गया ट्रिप खत्म, अच्छा भी लगा तो भी ठीक है, जब तो जाना है वापस ना। तो व्हाई डोंट वी सी आवर लाइफ एज दैट? एंड अगर वैसे हम अपना परसेप्शन चेंज कर दें ना, नजरिया बदल दें, और व्यू, then our entire view to life will change and our whole everything will change. At least I am expecting this particular discussion to challenge many of our original Dogmas. 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 Our dogmas. I'm not saying outside dogma. Our own dogma. There will be places where your basic things will be questioned. Yeah. So don't get disturbed. Don't get disturbed. In fact, it is very interesting to know कि क्या क्या dogma था. Objective way. बहुत Let it get disturbed. In fact, the whole idea is questioning our own basic beliefs. Yeah. Now, if we go on questioning our own beliefs, then new beliefs can be formed. Because whatever belief we have don't seem to be working the way we wish to work them to work. आप देखो जैसे डेवलपमेंट, ये इस वर्डों में हम लोग घूम गए हैं, ये वर्ड हमारे को इस तरह से मिसयूज करके डाल दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक वंदे भारत नाम दे दिया ट्रेन को, आप उछलने लग गए, वो ट्रेन डेक्कन क्वीन से भी स्लो चलती है, और नाम वंदे भारत दे दिया। आप जैसे डेवलपमेंट दे दिया, व्हाट इज डेवलपमेंट? इज इट रियली डेवलपमेंट? आज क्या है, आप देखो डेवलपमेंट को, तो गांव इज डेवलप्ड और सिटी इज डेवलप्ड, कहाँ पर सुख शांति है? अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? व्हाट इज अट्रैक्शन? मैंने लास्ट टाइम पूछा था, वो बात नहीं हो पाई थी। व्हाट इज अट्रैक्शन एक्चुअली? अट्रैक्शन का अपोजिट क्या है? What is the opposite of attraction? Distraction. So attraction isn't it distraction? Continuously. Attraction, is it not distraction? But when you say attraction,
तो वो अलग उसकी मीनिंग समझ में आती है। बट जब बोलो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है, तो असल समझ में आता है। जैसे एक्सपीरियंस, हम कहीं जाते हैं, वेस्टर्न लोगों ने ये सब बनाया, हमारी साइंस को मिसयूज कर लिया है। बोलते हैं हम आपको एक एक्सपीरियंस देंगे, आपको मेडिटेशन कराएंगे, आपको प्राणायाम कराएंगे, ये कराएंगे। आप बोलते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब उसको हिंदी का वर्ड यूज करो, अनुभव। सोचो, अनुभव क्या है? क्या अनुभव कर रहे हो आप? तो आपका पूरा वही चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव। Just because other people are saying, हाँ क्या हो गया मेरे को क्या एक्सपीरियंस, बढ़िया we एक्सपीरियंस। also start saying, we don't question ourselves, so what यार, Just copying. जस्ट आपको कॉपिंग इट। आपको अंदर शहरिया लेना, okay, you have goosebumps, so what happens, what happened to you, how did you change your thinking, did your life change, did your thinking change? ये सब्जेक्ट Those are the question, because such kind of a, even these siddhis and all these things are a distraction in a way. सिद्धि कुछ नहीं है। सिद्धि You मैं start आपको, feeling great about it. I can explain what is सिद्धि। सिद्धि मिल गई, वो सिद्धि मिल गई। मैं सिद्धि बताता So हूँ। what? सिद्धि कुछ नहीं है। सिद्धि क्या होता है, जब आप प्योरिफाई, Exactly. So are we looking at the right perspective of life? ट्रेजर हंट क्या होता है? No, Like- you're saying about Siddhi, na? So, सिद्धि का क्या है? So सिद्धि, siddhi also is same. no, let me think about Siddhi. so siddhi is I'll explain scientifically. When you start purifying, this is another topic which will come later on, but now because we have come up touched upon this, siddhi is when you start purifying. ये पूरा इसका एनर्जी है। We are now not in resonance with the universe or the nature or surroundings or to the true self. Our true self is supposed to have certain energy, electromagnetic field. But due to our impurities, our magnetic field and the frequency is all changing. The operating range is changing. We are designed to operate in a certain range. Everything, every body is designed to operate in a certain range. Now we are operating in a lower range. When we are in resonance with the universe, when we start purifying, our energy level is changing. It is coming in sync with the universal law, universal frequency. When like दो जनरेटर को पैरेलल करते हैं इसमें पावर प्लांट में, या हमारे शिप, मैं जब शिप पे था तो हमारे दो जनरेटर पैरेलल होते थे। तो जब जनरेटर पैरेलल कब होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसके सारे पैरामीटर मैच करेंगे, तो ही पैरेलल होगा। देन टू विल ऑपरेट एंड प्रोवाइड मच मोर एनर्जी। तो क्या होता है, हमें जब यूनिवर्सल एनर्जी को के साथ हम जब रेजोनेट करते हैं, तो वो एनर्जी भी हमारे को साथ में मिल जाती है और चीजें होती हैं। आर विजन विल इंक्रीज, आर इंट्यूशन विल इंक्रीज, क्लैरवॉयंस आ जाएगा, जो क्लैरवॉयंस बोलते हैं। और जैसे कुत्ता है, उसकी सिक्स सेंस क्यों है? वो एक्सटर्नलाइज नहीं है, वो इंटरनलाइज्ड है। उसको फालतू चीजों से मतलब नहीं है, तो ही इज एबल टू स्मेल, ही इज एबल टू हियर। व्हेन आई इंटरनलाइज, आई कैन हियर वाटर ड्रॉपिंग ऑन माय हायर फ्लोर। I can see something which I told last time, a rain of particles. So when you internalize, you can see so many things. When you are in resonance, you are able to see, और उसको लोग सिद्धि बोल देते हैं। कई बार फ्लूक पे भी हो जाता है, और सिद्धि है तो ठीक है। मतलब सिद्धि में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, दूसरे दूसरे को भी हो जाती हैं आपसे। अब वो, अभी किसी को मैंने अच्छा फीलिंग देना है, मेडिटेशन क्लास चल रही है, मैंने कहा इसका मेडिटेशन नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चलो इसका हो जाए, कुछ करो। मैंने हनुमान जी रामायण से पढ़ ली, और वो लेडी को हो गया मेरी क्लास में, स्पेन में। बट क्या है वो, दैट इज नॉट राइट। इफ यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस समबडी थ्रू योर एबिलिटी टू इम्पैक्ट, दैट इज नॉट गुड। बट मैंने देखा कि पूरी क्लास निकल गई है, लेडी स्ट्रगलिंग 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 स्ट्रगलिंग। अब उसके तो एक्सपेक्टेशन इतने बड़े हुए हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो वो कैसे होगी? बट आप उसको क्यों इंटरवीन करोगे? शी विल हैव टू वर्क ऑन हरसेल्फ। सो ये सिद्धि तो इसलिए आती है और कुछ नहीं है। ये सिद्धि क्या है? ऑटोमेटिक है। Oneness is, यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यूनिवर्स। Asking you the further question. After siddhi, what? Nothing, I'm saying, yes, of Siddhi. No, that is wrong. That is wrong.
That is wrong. The siddhi is there. That means your capacity has increased. Yes. Now, how are you going to use that Use it. capacity is what That is the my point. question is. Yes. एक्चुअली उसको यूज भी नहीं करना। Yes. एक्चुअली जो चीजें हो रही हैं मैनिफेस्टेशन होते हैं। मैनिफेस्टेशन, मेरे इतने मैनिफेस्टेशन हो रहे थे कि मेरे को डर लग गया, और उसका फायदा हुआ। जब मैनिफेस्टेशन हो रहे थे तो मेरे को डर लग गया कि आई स्टॉप डिजायरिंग। वहां मेरी पूरी डिजायर खत्म हो गई, और मेरे को डर लग गया कि मैं कुछ भी डिजायर कर रहा हूँ वो हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप आदमी तो चाहता है मेरी डिजायर फुलफिल हो, पर जब डिजायर एकदम से फुलफिल होने लगती है, छोटी छोटी भी, तो लगता है यार ये तो गड़बड़ है मामला, यू हैव टू स्टॉप इट। तो फिर उससे मेरी पूरी डिजायर खत्म हो, फिर भी आ जाती हैं। ये सीसॉ फंक्शन है, ये आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो अपने को प्योरीफाई करते हो, फिर भी वो डावाडोल होता है, उसका आपका टेस्ट होता रहता है। ये दीज आर ऑल टेस्ट है। हमारी लाइफ इज अ टेस्ट। तो ये सिद्धि आ रही है, उसको देखना ही नहीं है। आप अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि मेरा इम्प्योरिटी क्या बची है, और फिर आप एक स्टेट में पहुंच जा रहे हो। अल्टीमेट एम क्या है आपका कि आप एक काम स्टेट में पहुंच जाओ, यही तो है बस। और क्या चाहिए? That also could be questioned. I'm not saying that is the ultimate. नहीं, that is one milestone. No, but is Basic that milestone. your aim? Is that your aim? एम कैन बी Then मैनी। you decide your aim. उसके आगे भी एम है बहुत सारे। Decided your aim. नहीं वो What? Don't tell me. But the question is, have you decided your aim? Where do you want to go? Maybe the aim will change after you reach Yeah. that particular place. The aim will change. एम चेंजेस, That's fine. दैट्स फाइन। But have you, as a have you defined your aim? बट Where do you want to be? एक्चुअली What do पहले you want to do? a lot of time it happens। मैं भी जब 2015 में ऋषिकेश गया तो मेरे से पूछा उन्होंने, स्वामी जी ने, तुम्हारा गोल क्या है? तो मेरे को कोई गोल ही नहीं था, मेरे को नहीं मालूम था। तो एक स्टेज आती है जब गोल भी नहीं मालूम होता। ये भी होता है। फिर गोल मालूम पड़ता है, फिर नेक्स्ट गोल मालूम पड़ता है, फिर नेक्स्ट गोल मालूम पड़ता है, रास्ता खुलता जाता है। We can say decluttering of mind. हाँ, अभी तो वही गोल है, Correct, correct. अभी वही गोल है। Correct. But that should be a conscious aim, Yeah. and you should be working towards it. See, what is happening is today, everyone is going his own way, own speed, that's all fine. But going nowhere, That's happening. because he doesn't have an aim. He doesn't want to go anywhere, he hasn't decided why he is going somewhere, wherever he is. He has not decided. So what happens? अब प्रवाह पतित हो गए हम. We're just going along with the current. It's just flowing. And the whole discussion, aim of the discussion is just waking us up. I'm saying us, sir. I'm not even saying you. It is just waking us up. And I think that is what is lacking just now in theosophical reading, theosophical way in which we are working right now. I Yesterday, think we need to really think about it, really discuss about it. Each person might be having his own ways of looking at it. आप स्कूल ऑफ विजडम है, उसका किसी कोर्स के लिए अप्लाई करो। अडयार में बहुत से कोर्स होते रहते हैं। आई एम गोइंग इन February फॉर वन कोर्स, मिस्टर पांडे का लेक्चर। सो व्हेन यू अप्लाई इन दैट फॉर्म, तो उसमें एक आता है, दीज आर द 5 डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव टू रीड बिफोर यू कम टू स्कूल ऑफ विजडम। जनार्दन दासा जी की एक, उसमें उनका काफी लंबा है, राधा बर्नियर का एक डॉक्यूमेंट है। उसमें ये लिखा है कि हमारा मेन एम ये है कि लोग थिंकिंग करें यार, थिंक करें यार, इंट्रोस्पेक्शन करें यार, और सब विजडम गेन करें। विद्वान नहीं बने, ज्ञानी बने, विजडम गेन करें, और सब जगह अपने स्कूल ऑफ विजडम खोलें। मैं उनमें यही लिखा है कि यहाँ वी वांट दैट एवरीबडी ओपन द स्कूल ऑफ विजडम एंड हैव देयर ओन, the interpretation is that you have your own group to have this kind of discussion for awakening और कुछ नहीं है। और awakening ही हमारा पहला है कि पहले तो हम reality को समझें, what is my main way of existence। जो आप बोले ना कि mind declutter, वो हमारा पहला गोल है कि हम एटलीस्ट ऑप्टिमली परफॉर्म तो करें। अगर मेरी गाड़ी ऑप्टिमली परफॉर्म कर रही है, अब नेक्स्ट आई कैन सी व्हाट आई कैन यूज इट फॉर नेक्स्ट। अब मेरी गाड़ी ठीक से काम कर रही है, जैसे आपको
4 बच्चे हैं, उनमें से आपको एक को लेना है किसी चीज के लिए स्कूल में, तो बोलेंगे यार ये ठीक है इसको ले लो, ऐसे करता है ना भाई, ये ऑप्टिकली परफॉर्म कर रहा है, इसको भी सेलेक्ट ना। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये ठीक है इसको ले लें, ये सही करेगा। कॉलेज ऑफिस में भी होता है, 10 लोग को प्रमोट करना होता है, एक को ही करता है ना, तो उसको क्यों प्रमोट करते हैं? बिकॉज इज परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या है, वी ऑल हैव टू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे विच इज डिफाइंड। ऑफिस में थिंग्स आर डिफाइंड, यहाँ कौन डिफाइन कर रहा है? यहाँ भी डिफाइंड था। हमारा जो समाज था, जिसको हम बड़े बड़े नाम देते हैं आजकल, सनातन धर्म जो भी बोल रहे हैं लोग, बट हमारा जो समाज था वो इतना इवॉल्व हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम राम, उनने मर्यादा क्यों रखी थी, प्रायश्चित क्यों किया था? ये सब इसलिए किया था कि ही सेट एन एग्जाम्पल दैट दिस इज द वे वी शुड लिव। हार्मनी क्या है, हार्मनी में क्यों नहीं जी रहे? ये तो जीने का एक शैली है, पहले हम उसको तो सही करें पहले। और वो तब सही होगा जब आपका दिमाग सही होगा, मेरा दिमाग सही होगा, आपका दिमाग सही। अगर हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं और 6 का दिमाग अगर सही है, तो एटलीस्ट हमने इसको तो क्लीन कर दिया। अब आप कहीं जाओगे, वहाँ 4 लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, फिर 4 को इन्फ्लुएंस करोगे, तो धीरे धीरे फिर ये हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, फिर देश को कर पाएंगे। आजकल देश को क्या हाल है, हर चीज तो बाहर से इम्पोर्ट होके आ रही है। अभी देखो वो बंदा मरा बैंगलोर में, क्या बड़ा दंगा मच रहा है, क्या है, बट अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारी सरकार ने आदमी और औरत को भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते करते हमारी सोसाइटी, पहले हम बोलते थे यूनिट फैमिली, अभी यूनिट फैमिली भी नहीं रही, आपस में ही लड़ मर रहे हैं लोग, आदमी औरत भी लड़ पड़ रहे हैं, सब लड़ मर रहे हैं। इंसैनिटी। कृष्णमूर्ति का मैं वो देख रहा था, बच्चों को पढ़ा रहे थे, 3 बच्चों वाला एक वीडियो है, बोले यहाँ इकोनॉमी में इंसैनिटी है, इधर इंसैनिटी है, इधर इंसैनिटी है। तो छोटे बच्चे ने इनोसेंटली पूछा ऐसा क्यों है, और इसका भी एक बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि कलयुग में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी भी साइंस है। इस पे भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, उस पर एक वीडियो बना है, ये साइंस क्यों है। बिकॉज सन की ऑर्बिट है और उसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और जो एनर्जीज आती हैं वो डिस्टेंस जब चेंज होता है, तो जब मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होता है, उससे जो एनर्जी चेंज होती है, विच साउंड्स लॉजिकल, कि व्हाट इज चेंजिंग इज दैट ओनली, विद द सन्स एनर्जी चेंजिंग। तो वो 24,000 ईयर में जब उसकी साइकिल में वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 4 युग बना दिए। हम लोग किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं जनरली 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे गार्टनर क्वाड्रेंट है, आईटी कंपनी में भी मोहन सीरीज वो एनालिस करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही वो 4 युग में बना दिया। 4 युग कोई ऐसा कुछ वो नहीं है धार्मिक, ये साइंटिफिक है, ये पूरी साइंस है। अभी वो आए नहीं आज, वो विनायक जी, उनने होली साइंस एक बुक ली थी ऐसे, वो मिस्टर उनने लिखी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने, योगनाथ जी के गुरु ने। तो उसमें पूरी साइंस समझाई है, जिसको एस्ट्रोनॉमी आती है उसमें Do you want to continue? 11:30. आप बताओ, 5-10 मिनट करना और continue। Whatever topic you are ठीक है। talking about. सो ये जो साइंस है कलयुग Okay, की, then give me about 5 minutes. Once you shut this off, हम्म, there'll be a place where it says ki it is doing something inside. हाँ, Okay, let it do it. अच्छा अच्छा, प्रोसीड। Okay, फिर शट डाउन अपना क्यों होता है? फिर शट डाउन करो, यानी उसको 10-15 मिनट लग जाएंगे. हाँ, वो शटिंग डाउन ठीक है, shut लिखता down. हूँ। Okay, and you have the key. रख के जाता हूँ. Where? तो कितने मिनट, 5 मिनट बंद कर दें? हाँ? बंद कर दे 5 मिनट। और 5 मिनट बंद कर दो. ठीक है. हाँ, 5 मिनट बंद कर दे। तो ये तो कलयुग का भी साइंस है, इसको भी हम अलग से डिस्कस कर रहेंगे, तो रियली अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है इंसैनिटी। युक्तेश्वर गिरी नहीं, अब द्वापर में जा रहे हैं, कलयुग खत्म होने वाला है, कलयुग खत्म हो रहा है, एंड पे आ रहा है, बस एंड पे आ रहा है। हाँ, मतलब एक होता है ट्रांजिशन, ओवरलैपिंग फेज द्वापर युग में और इसमें, ओवरलैपिंग फेज। सो अब अवेकनिंग हो रही है, और अवेकनिंग तभी होगी जब लात पड़ती, तभी अवेकनिंग होती है। अब सबके दिमाग खराब होने, कल आचार्य प्रशांत का मैं वीडियो देख रहा था, बोला था अभी 5 साल बाद ये हाल हो जाएगा, लोग सड़क पे आके अपने कपड़े फाड़ेंगे, लड़ेंगे। ऐसे ही हो रहा है लिटरली, रोड रेज कितना बढ़ गया है। तो वही, इट्स लाइक 5 साल बाद और क्या हाल होगा, आप सोच सकते हो कितना रैपिडली डिटेरियोरेशन हो रहा है। पहले एक्चुअल वॉर होते थे, अब तो मेंटल वॉर हो रहा है, माइंड वॉर हो रहा है, स्टेल्थ वॉर है, साइको गेम्स हो रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हमारे साथ खेल रहे हैं। तो अब हमें अपने को उस इंसैनिटी में कैसे सेन बनाना है वो देखना है बस। तो हम अपने को सैनिटी में ज्यादा बढ़ गई, गलत तरीके से हाँ, हाँ।
चलिए इसको बंद करते हैं आज का। हम लोग चाहे तो बाहर थोड़ी देर बात कर सकते हैं, इसको तो क्लोज कर सकते हैं अगर किसी को करनी है। शट डाउन, रिकॉर्डिंग स्टॉप।